Welcome student. Unit 2nd, current electricity. Clear? Now, today is my topic, electric current. Today is my topic, electric current. Means the rate of flow of charge is called electric current. Clear? That is, ratio between charge and time is known as electric current. So current I is equal to charge upon time. Current I is equal to charge Q and time T. That is, current I is equal to Q upon T. It is a scalar quantity. Okay? And SI unit is ampere. That is AMP. Clear? So करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. क्लियर हुआ? करंट कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है. इसकी एसआई स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है. ठीक है? ओके. नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्लियर? सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है? किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. एंड वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सपोज करो ये एक इंसुलेटर रॉड है और इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन है. जब इसको हम सेल से कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होता है, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन जब इसमें रिएक्शन करते हैं तो ये क्या होता? मूविंग होता है. कहाँ पे? पॉजिटिव टर्मिनल के पास. So velocity of free electron is known as drift velocity, represented by Vd. Now, current density. Clear? Sorry. The current flowing through unit area of cross section at point in a conductor is called current density. Clear हुआ? So current flowing in a unit section, this is a conductor, and unit section का जो एरिया होगा उसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे. तो क्रॉस सेक्शन एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? करंट डेंसिटी. क्लियर हुआ? सो डेफिनेशन क्या होगी? the current flowing through unit area of cross section in a point in conductor is called current density. Clear हुआ? ठीक. Means current density J is equal to I upon area, यानी A. Clear हुआ? Means unit of I is ampere and unit of area meter square. That is current density unit ampere per meter square. Clear हुआ? Okay. Now other topic is relation between current density and drift velocity. Clear? We know that current I is equal to
J into A, where J is a current density and I is a electric current. So J is equal to I upon A. This is equation 1. Clear? So let number of electron is small n and area of cross section is capital A and drift velocity is Vd. Clear? So charge Q is equal to N into E. Charge Q is equal to N into E, and I is equal to क्या होगा बेटा? Q अपॉन T. So I is equal to क्या होता है? Q अपॉन T. Q is a charge and T is a time. ठीक है? So here charge of electron Q is equal to E. So E upon T. ठीक है? So E upon T. But velocity Vd is equal to distance covered by 1 second is called drift velocity. ठीक है? So कितना हो जाएगा? Distance covered by 1 second means Vd is equal to T. So I is equal to N A Vd into E. Clear हुआ? So this is a relation between drift velocity and electric current. ठीक है? But J is equal to I upon A means N A Vd E upon कितना होगा? A. So this is known as relation between J. A से कैंसिल कर दें. So J is equal to N Vd E. This is relation between J and क्या हो जाएगा? E. Now our topics Ohm's law. If a conductor resistance capital R, current flow in capital I, and potential between A and B is capital V. If physical condition is constant, then V is directly proportional I. Means यदि physical condition constant है तो potential of wire is directly proportional to the flow of current. Means V is equal to Ri. R is a constant, is known as resistance. Means I is equal to V upon R. This is known as Ohm's law. Clear? Now combination of resistance. ठीक है? रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दो प्रकार से होता है. मीन्स टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन. लेट अस कंसीडर थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 connect in series. Means first resistance R1, second resistance R2 and third resistance R3. So second end of first resistance connect first end of second resistance is known as series combination. Clear? यदि पहले रेजिस्टेंस का दूसरा भाग दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट होता है और ये कॉम्बिनेशन आगे चलता है तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं. क्लियर हुआ? सो
first part of first resistance and second part of last resistance connected with a cell E, switch K. So long terminal is plus and small terminal is minus. That is, current flow in external circuit is positive to negative, means this direction. ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आई है वो कॉमन होता है. क्लियर, करंट आई कॉमन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में. लेट पोटेंशियल ऑफ R1 is V1, potential of R2 is V2, and potential of R3 is V3, and potential of source is V. Source means सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है V, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज EMF. क्लियर हुआ? सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, इक्वेशन 1. ठीक है, बट पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज V1, सो पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज V1 इज इक्वल टू IR1, एंड पोटेंशियल ऑफ सेकेंड resistance is V2 IR2, and potential of third resistance is V3, that is IR3. Clear? This is equation 2. But total potential V is equal to V1 plus V2 plus V3. क्लियर है कि पोटेंशियल V डिवाइड हो रहा है तीन पार्ट में, V1, V2 एंड V3 में. दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड V3. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, पुटिंग वैल्यू, देन IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. क्लियर? So I is common and I is common. So R is equal to R1 plus R2 plus R3. Clear हुआ? And R is equal to R1 plus R2 plus R3. That is, यदि हमको पोटेंशियल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो सारे रेजिस्टेंस को हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, इफ n रेजिस्टेंस है, then R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus dash dash Rn. तो सारे रेजिस्टेंस हम सीरीज में करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी होगी, R is equal to R1 plus R2 plus R3 dash dash Rn. Second, parallel combination. Clear? So here three resistance, R1, R2 and R3 connect in parallel combination. In this combination, first end of each resistance connect in point A. Clear? सभी रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को पॉइंट ए से कनेक्ट करना है, एंड second end of each resistance connect in point B. Clear? And point A and B connect in cell, means cell E connect between point A and B with key या switch K. Clear? So current flow positive to negative direction, that is point A, current divided in three parts. First part I1, second part I2 and third part I3. Means flow of current in R1 is I1 and R2 is I2 and R3 is I3. Clear? So this current
flow in a circuit. Clear? Potential of cell is V. हमें ये ध्यान रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल V हमेशा कॉमन रहता है. क्लियर हुआ बेटा? मैंने क्या बताया था? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट कॉमन रहता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा क्या पोटेंशियल जो है वो कॉमन रहता है. क्लियर हुआ? सो इन दिस कॉम्बिनेशन ओम्स लॉ V is equal to IR, that is I is equal to V upon R. This is equation 1. Clear? अब इसी प्रकार करंट फ्लो in R1 is I1 V upon R2, V upon R1. Similar current flow R2 is I2 V upon R2, and current flow in R3 is I3 is equal to V upon R3. This is equation 2. But total current I is equal to I1 plus I2 plus I3, means equation 1 and 2 we get V upon R is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3, that is 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, means पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, मीन्स रेसिप्रोकल होगा. सो जब हमको रेजिस्टेंस कम करना होता है उस समय पे हम कौन सा कॉम्बिनेशन करते हैं बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन. और जब इंक्रीज करना होता है तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन. थर्ड कॉम्बिनेशन होता है मिक्स कॉम्बिनेशन. यदि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों को एक साथ अप्लाई करें तो वो मिक्स कॉम्बिनेशन होता है. इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, बट इसमें हम इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज करते हैं. इसको मैं जो आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा उसमें मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरचॉफ लॉ. क्लियर? किरचॉफ लॉ क्या होता है आपको बता दें. किरचॉफ ने इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड 2 लॉ दिए जिसको हम किरचॉफ लॉ बोलते हैं. ये फर्स्ट लॉ है. फर्स्ट लॉ क्या है कि एट अ जंक्शन पॉइंट, कोई एक पॉइंट है जंक्शन पॉइंट, यहाँ पे बहुत सारे करंट आ रहे हैं, इसको हम जंक्शन पॉइंट बोलेंगे. सपोज करो ये है पॉइंट, जंक्शन पॉइंट है. I1, I2, I3, I4, I5 and I6. 6 current meet in this point. ठीक है? So addition, algebraic addition of all current is 0. Clear हुआ? Means algebraic sum of all current is 0. Means summation I is equal to 0. Clear? So summation I means all current. डायरेक्शन देखो बेटा, I1 का डायरेक्शन सेंटर की तरफ है. So I1 plus I2 प्लस I3, I1, I2, I3 दोनों सेंटर पे जा रहे हैं. एंड I4, I5, I6 इनका डायरेक्शन सेंटर से अपोजिट है. मीन्स माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू 0. सो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6. This is first law of
इलेक्ट्रिक करंट मीन्स किरचॉफ फर्स्ट लॉ। क्लियर हुआ? नाउ सेकेंड लॉ मीन्स algebraic sum of product between EMF and resistance is algebraic sum of current and resistance is numerically equal to the algebraic sum of EMF. Means algebraic sum of, that is summation, algebraic sum of I and R means current and resistance is equal to the algebraic sum of EMF of circuit. Clear? Means summation I into R is equal to summation E. Means if any closed circuit, देखिए एक क्लोज सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस R1 सेल E1 कनेक्ट, एंड सेकेंड में रेजिस्टेंस R2 एंड E2, थर्ड में रेजिस्टेंस ओनली R। मीन्स A B C D E F। Now, a closed circuit A, B, C, D, E, F. Each branch resistance R1, R2, R3 and connect cell E1, cell E2. Clear? So cell E1 से करंट फ्लो हो रहा है I1, सेल E2 से करंट फ्लो हो रहा है I2। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की साइड होता है। मींस ये करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। नाउ रेजिस्टेंस R1 करंट फ्लो I1, रेजिस्टेंस R2 करंट फ्लो I2 एंड रेजिस्टेंस R3 मींस डायरेक्शन ऑफ करंट इज I1 A to B and current I2 is B to C. But here करंट I1 भी फ्लो हो रहा है और यहाँ I2 भी फ्लो हो रहा है। सो टोटल करंट होगा I1 माइनस I2। क्लियर? बट हियर पे यहाँ पे I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है, तो यहाँ पे करंट होगा I1 प्लस I2। समझ में आया आपको? यानी इस वाले सर्किट में I1 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, I2 का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट जाएगा। मीन्स ये है I1 एंड ये डायरेक्शन किसका होगा? I2 का। सो दोनों डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी होगी? I1 माइनस I2। बट हियर I1 भी नीचे साइड आएगा एंड I2 भी इसी डायरेक्शन में आएगा। सो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? I1 प्लस I2। ठीक है? ओके। नाउ अप्लाइंग और लॉ इन क्लोज सर्किट A, B, E, D एंड A। क्लियर? सो I1 क्या होता बोला था मैंने आपको? करंट I1 माइनस I2 एंड रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू सेल कितने कनेक्ट हैं? 2 सेल कनेक्ट हैं। सो E1 माइनस कितना हो गया? E2। क्लियर हुआ? मीन्स देखिए यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन में करंट कितनी फ्लो हो रही है? I1 माइनस I2। रेजिस्टेंस कितना है? R1। क्लियर? और यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है? R2। सो इसमें कितनी हो रही है? I1 माइनस I2, और यहाँ पे सेल कितना है? E1, और ये सेल कितना है? E2। सो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी होगी? E1 माइनस कितनी हो जाएगी? E2। ठीक है? सो सर्किट क्या होगा हमारा यहाँ पर? सबसे पहले I2 R2 प्लस I1 माइनस I2 इंटू कितना? R1 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक है? अब देखिए सेकेंड इसमें BCFE एंड B।
देखो इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, ये वाला नीचे वाला सर्किट, इसमें कितना रेजिस्टेंस कितना है, आई ओनली, देखिए दिस सर्किट, ये रेजिस्टेंस कितना है I2 R2, करंट कितनी है I2, ठीक है। यहाँ करंट कितना I1 प्लस I2, कितने में से फिल हो रही है R2 में से, R3 में से। EMF केवल एक ही है, कितना है E2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे बेटा, देखो I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू E2। क्लियर हुआ। सो दिस इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ। क्लियर हुआ।